Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all in organic chemistry. Our today topic is identification test for aldehydes and ketones. First of all, we will discuss the how to differentiate between carbonyl compounds and non-carbonyl compounds. जैसे अगर हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड या कीटोन है, क्योंकि दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप होता है, और दूसरे में कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है, जैसे कोई अल्कोहल है, कुछ और कंपाउंड है, उन दोनों में डिफरेंशिएट करना हो तो वी हैव टू इजी टेस्ट. वन बाय यूजिंग सोडियम बाइसल्फाइड. हम इसमें बेस कैटलाइज्ड यानी अलॉन्ग विद अ बेस सोडियम बाइसल्फाइड डालेंगे. दूसरी टेस्ट ट्यूब में भी वही डालेंगे. जिस टेस्ट ट्यूब में वाइट प्रेसिपिटेट बन गए, that will be aldehyde or ketone, mean that will be carbonyl compound. और जिस टेस्ट ट्यूब में कोई वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बने, it mean there was such compound which has no carbonyl group. So we can write a carbonyl compound like an aldehyde or ketone can be differentiated by adding basic या alkaline sodium bisulfite NaHSO3 from a non-carbonyl compound like we can take an example. If we have this formaldehyde in one of the test tube, we add sodium bisulfite in presence of catalytic amount of sodium hydroxide. What will happen? We will get HCH. One of the hydrogen will combine with O and rest NaSO3. That will be written as SO3Na. This will give white precipitates. उस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास white दाने precipitates बन जाएंगे. But the other test tube which has a compound other than a carbonyl group, suppose we have this thing CH3, CH2, C and this compound. It is a non-carbonyl compound. इसमें C double bond और group नहीं है. अगर हम इसमें डालेंगे NaHSO3 and then we have this catalytic amount of NaOH, there will be no product, no white precipitate. So by this test we can differentiate between a carbonyl compound and a non-carbonyl compound. But the question is that अगर हमारे पास एक ऐसा टेस्ट आ जाए, जैसे हमारे पास टू टेस्ट ट्यूब्स थी, एक में था एल्डिहाइड लाइक फॉर्मल्डिहाइड, दूसरे में था हमारे पास एक कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 जैसे एसीटोन. अब दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप है, तो उनके लिए तो ये टेस्ट काम नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों के साथ वाइट प्रेसिपिटेट दे देता है, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो. तो वी विल हैव टू डिस्कस सम अदर टेस्ट. वी कैन से डिफरेंशिएशन बिटवीन an aldehyde and ketone can be done by, we have 3 to 4 tests. Tollens test, second name silver mirror test, Fehling test, Benedict test or sodium nitroprusside test. So first we talk about Fehling test. जब हम Fehling टेस्ट की बात करते हैं तो Fehling टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट दोनों बाय इक्वेशन बाय वर्डिंग टोटली सेम होते हैं, जस्ट कैटलिस्ट यूज्ड इज डिफरेंट. तो अभी हम जरा बात करते हैं एल्डिहाइड्स गिव brick
brick red precipitate precipitates with Fehling reagent, but ketone will not give. कीटोन ऐसे कोई प्रेसिपिटेट्स नहीं देंगे. कीटोन विल नॉट. अब हम इसमें बात करते हैं. बाय इक्वेशन वी कैन से, सपोज वी वर हैविंग दिस एल्डिहाइड, वी ऐड कॉपर हाइड्रोक्साइड इन दिस along with sodium hydroxide. इन दोनों को हम कहते हैं Fehling's reagent when we are using cupric tartarate as catalyst. What will be the product? हमारे पास बनेगा HC double bond, यहां से ONA that will combine with this and give this side plus. अब हमारे पास था, आपके पास अगर बैलेंसिंग पर्पस के लिए फर्स्ट के 2 लेते हैं तो दिस विल गिव Cu2O एंड द नेक्स्ट वन इज जो साथ बनेगा वाटर. ये जो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बना, दिस विल गिव ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स. जो हमारे पास ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स आ रहे वो Cu2O की वजह से आ रहे, इसलिए हमने वहां पे इसको रेड कलर में मेंशन कर दिया. नाउ इफ वी टेक अ कीटोन, suppose this one C double bond O CH3, we add same substances plus sodium hydroxide, same catalyst, there will be no product or no reaction. तो in short we can say कि अगर एक टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड था, एक में कीटोन था, हमने दोनों में क्यूप्रिक टार्टारेट along with these reagents डाला, तो हमारे पास क्या होगा, जिस टेस्ट ट्यूब में ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे that will be containing aldehyde, जिसमें नहीं बनेंगे that will be having ketone. अब next one is Benedict test. Benedict's test हमने कहा टोटली सेम होगा, वर्ड टू वर्ड, जस्ट कैटलिस्ट इसमें चेंज होगा, क्योंकि बेनेडिक्ट रिएजेंट में क्यूप्रिक टार्टारेट की जगह क्यूप्रिक सिट्रेट यूज होता है. तो वी कैन राइट दिस aldehydes gave brick red precipitates with this Benedict's reagent, but ketone will not. Overall equation is same. Suppose this is formaldehyde again and we add copper hydroxide plus sodium hydroxide in presence of cupric citrate as catalyst. We will get just like the previous one, HC double bond ONA, Cu2O and water. This Cu2O will be showing brick red precipitates. अब हमें सीक्वेंस याद रखने के लिए समटाइम माइंड में कंफ्यूजन होती है. अच्छा, फेलिंग टेस्ट में क्यूप्रिक टार्टारेट था या सिट्रेट था, इसी तरह बेनेडिक्ट में. तो हमें एक टर्म याद रखते हैं, फुट, जैसे हमारा पांव होता है, FT फेलिंग टेस्ट में टार्टारेट यूज होता है. फुट FT फेलिंग टेस्ट में टार्टारेट यूज होता है. और BC ABC में जैसे आता है, तो बेनेडिक्ट में C मीन सिट्रेट यूज होता है. जब ये आप दो बातें याद रखेंगे, फुट और BC, तो फेलिंग टेस्ट यूज टार्टारेट्स और BC बेनेडिक्ट टेस्ट यूज सिट्रेट. तो हमें वो कोई मिक्सिंग या कंफ्यूजन नहीं होगी. द नेक्स्ट वन दैट इज टोलेंस टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट. Silver mirror test. What happens इस टेस्ट में, अगर एक में हमारे पास एल्डिहाइड है ट्यूब में, एक में कीटोन है,
हम दोनों में अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं, अभी हम मेंशन भी करते हैं। जिस टेस्ट ट्यूब में अंदरूनी साइड पे चमकती हुई सिल्वर बन के अटैच हो गई वो तो होगा एल्डिहाइड, और जिसमें आपके पास कोई चांदी नहीं बनी दैट विल बी कीटोन। तो इन दिस टेस्ट वी ऐड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। हमारे पास ये कॉलेज लैब्स में आराम से अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन मिल जाता है। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट, उसमें अमोनिया डाला गया। एल्डिहाइड्स गिव silver mirror at inner side of test tube, but ketone will not. इस टॉपिक को सीखने के बाद हम इस काबिल हो जाते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कहीं भी अगर क्वेश्चन आ जाए, डिफरेंशिएट बिटवीन एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन, differentiate formaldehyde between butanone, differentiate between phenol and formaldehyde, तो इस तरह के सारे जितने भी रीजनिंग क्वेश्चंस बनते हैं केमिकल टेस्ट बेस, वो हम बड़े आराम से इस टॉपिक को लर्न करने के बाद उनको आंसर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।